Jai Shri Krishna everyone, welcome back to my channel. And finally, today we are starting our first practical session in MS SQL Server. Till now, we understood theoretical concepts like what is SQL, what is DBMS, what is RDBMS, and now we are going to start practical implementation step by step. So, let's start. First, this screen you are seeing is called SQL Server Management Studio, also known as SSMS. SSMS is a tool provided by Microsoft which helps us work with SQL Server databases. In simple words, SSMS is like a workspace where developers and database administrators perform database operations. Using SSMS, we can create database, create tables, insert records, write SQL queries, and manage complete database systems. So basically, SSMS helps us interact with database easily. Now on the left side you can see Object Explorer. Object Explorer is one of the most important section in SSMS. Okay, here we can see all databases related objects like database. ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर में हमें सब कुछ दिखता है कि हमने कौन से डेटाबेस क्रिएट किए, हमारे स्टोर प्रोसीजर्स, टेबल्स, व्यूज, फंक्शन, हम जो भी क्रिएट करते हैं वो हमें ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर में दिखता है. Okay, object in simple words, Object Explorer helps us organize and manage database components. Now here you can see two types of database. One is system database and one is user database. अभी मैंने इधर मेरा user database means मैंने खुद के databases create किए हैं. So इधर user databases ये option नहीं आ रहा है हमें. हियर हम देखते हैं सिस्टम डेटाबेस को हम एक्सपेंड करते हैं. सो लेट्स अंडरस्टैंड सिस्टम डेटाबेस. व्हाट इज सिस्टम डेटाबेसेस? सिस्टम डेटाबेसेस आर automatically created by SQL Server during installation. These databases are very important for SQL Server internal working. Without these databases, SQL Server cannot function properly. Means master database, model database, MSDB and TameDB, ये चार हमारे system databases. Okay, so now let's understand each system database one by one. First one is master database. Master database क्या करता है? Master databases store server level information. System databases. Okay, master database store server level information. The master database is one of the most important databases in SQL Server. It store login details, configuration settings, database information and server information. Now let's understand with real life example. Means master database कैसे work करता है? Suppose your company SQL Server contains many databases, login IDs, passwords and server configuration. All this information is stored inside the master database. Okay. For example, if developer create database is called a company DB. अभी for example मैंने एक database create किया. Create company DB. Create database company DB. Okay. अभी जो भी मेरी कंपनी DB के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी, मीन्स मैं इसमें जो भी टेबल्स क्रिएट करूँगी, व्यूज़ क्रिएट करूँगी, फंक्शंस जो भी होगा वो कहाँ पे से होगा? मास्टर DB में. कंपनी DB में टेबल्स वो सब कुछ स्टोर होगा, बट इसका इंफॉर्मेशन मास्टर DB में भी स्टोर होगा. ओके, it means information about company DB is stored inside master database. Similarly, if new employee login is created, that login information is also stored in master database. ओके, अभी हम देखेंगे कि कैसे इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, मास्टर डेटाबेस में कौन से टेबल है. ओके, अभी यहाँ पे हमें हमारा मास्टर DB ही सिलेक्ट है. हम जब कौन से भी अलग अलग डेटाबेस में चेक करना होता है, फॉर एग्जांपल अभी मुझे चेक करना है MSDB डेटाबेस में क्या क्या है, तो मैं इधर डेटाबेस सिलेक्ट करूँगी. अभी मुझे मास्टर डेटाबेस में चेक करना है कौन से टेबल में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, तो इसलिए मैं मास्टर DB सिलेक्ट करूँगी. ओके, नाउ
मुझे देखना है कि ऑल डेटाबेस मेरे एसक्यूएल सर्वर में जितने भी डेटा कौन से डेटाबेस अवेलेबल है। सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सिस्टम डॉट डेटाबेसेस, इधर आए डेटाबेस सिस्टम डेटाबेसेस। ओके, अभी मैं सिलेक्ट करके रन करूँगी। ये देखो कौन से डेटाबेस है, नेम मास्टर, टेमडीबी, मॉडल, एमएसडीबी, ये 4 हमारे सिस्टम डेटाबेस। और यूजर डिफाइंड डेटाबेसेस भी उसका इंफॉर्मेशन है, सिंपल डेटाबेस, इंश्योरेंस डीबी। ये यूजर डेटाबेसेस है, टेस्ट, एक आइटम हिस्ट्री, इंटरव्यू, एसक्यूएल क्लासेस, ये सब कुछ यूजर डेटाबेसेस हैं। कौन से देखो, डेटाबेस आईडी, क्रिएटेड डेट, सब कुछ, कलेक्शन नेम, यूजर एक्सेस, सब सिस्टम डेटाबेस में स्टोर होता है। इधर टाइप भी होगा, सिंपल डेटाबेस एंड सिस्टम डेटाबेस एंड यूजर डिफाइंड डेटाबेसेस। मीन्स ऑल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन हमें हमारे मास्टर डेटाबेस में स्टोर होती है, मास्टर डेटाबेस में, सिस्टम डेटाबेसेस में। ओके, तो मास्टर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सिस्टम डेटाबेसेस क्या करता है, तो ऑल डेटाबेसेस अवेलेबल इन एसक्यूएल सर्वर। ओके, अभी मुझे देखना है ऑल लॉगिन डिटेल्स। ओके, तो मास्टर डीबी में टेबल है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन्स। ये क्या करता है, शो ऑल लॉगिन डिटेल्स। ओके, क्रिएटेड डेट, अपडेटेड डेट, कौन सा डेट, सब इधर लॉगिन डिटेल जो भी है वो इधर सेव होता है लॉगिन टेबल्स में। हम जब डेटाबेस क्रिएट करेंगे, अलग अलग लॉगिन देंगे, तब ये हमें हमारे एग्जांपल लेके हम देख सकते हैं इस टेबल में। ओके, अभी मुझे सब ऑल डेटाबेस फाइल्स का लोकेशन चेक करना है। ठीक है, तो मैं उसके लिए क्वेरी है मास्टर डीबी में, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सिस मास्टर फाइल्स। ओके, अभी इधर मुझे देखना है ओनली नेम एंड फिजिकल नेम। फिजिकल नेम शो ऑल, ये क्या करता है सिस्टम, यहाँ पे शो ऑल डेटाबेसेस, डेटाबेस फाइल्स लोकेशन। ओके, देखो अभी किधर कौन सा डेटाबेस कहाँ पे स्टोर है वो हमें लोकेशन दिखता है, मीन्स कौन से फोल्डर में मैंने स्टोर किया है वो सब कुछ लोकेशन मुझे इधर दिखेगा। ओके, अभी सी ड्राइव में मेरा सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, इधर मेरा टेम्पररी टेबल होगा जो भी 6 नंबर का वो स्टोर है। जो भी मेरे ये मैंने टेबल्स क्रिएट किए, सॉरी डेटाबेसेस क्रिएट किए, वो कौन से फोल्डर में स्टोर है वो लोकेशन इधर शो कर रहा है।
ठीक है। अभी मुझे और देखना है कि कितने यूजर्स है। अभी मैं जो भी अलग अलग सर्वर होते तो कितना हाउ मेनी यूजर्स वो सर्वर यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए भी हमें सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सिस नेम। ये देखो पब्लिक गेस्ट डेटाबेस इंफॉर्मेशन स्कीमा, कौन से यूजर्स चेक कर रहे हैं वो, ये हम आगे आगे हमारे टेबल्स और डेटाबेस क्रिएट करेंगे तो हम एक एक वन बाय वन शो करेंगे। मास्टर डेटाबेस भी हम चेक करेंगे। ओके, ये क्या करता है, शो ऑल सर्वर यूजर्स। ओके, अभी मेरे डेटाबेस में मेरे सिस्टम में टोटल कितने टेबल्स हैं इन मा। ओके, अभी मुझे वो चेक करना है। सो उसके लिए क्वेरी है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम sys डॉट टेबल्स। फिर देखो नेम ऑब्जेक्ट आईडी यूजर टेबल। ओके, ये क्या करता है, शो ऑल सिस्टम टेबल्स हमें शो करता है, सिस्टम टेबल्स इन मास्टर database. So master database works like the brain of SQL server. If master database gets corrupted, SQL server can face major problems. Now we can learn a second database is model database. What is model database? Model database is called template database. No many means template database like means what is template database. Templates database means, let's understand with a simple real life example. Suppose your company has employee registration form. That form already contains name field, mobile number field, email field, address field and date field. Now every time new employee joins, company does not create form from scratch again and again. Okay, instead they use same ready-made format again. That ready-made format is called template. Similarly, model database works like ready-made template for new databases. Now understand, whenever we create new databases, SQL Server copies some basic settings and structure from model database. For example, suppose model database already has default file size, recovery settings, database configuration, and then every new database automatically inherits those settings. Okay, that's why model database is called a template database, like a ready-made format or a template this used again and again. So we can call model database is called a template database. Okay, third database is MSDB database. What is MSDB database? MSDB database is mainly used for scheduling and automation tasks. Now, what does scheduling means? Suppose company wants uh, database backup every night automatically, or suppose manager wants daily report generated automatically every morning, or company wants automatic email alerts if database issue occurs. ओके, अभी डेली लाइफ में डेली डेटा आता है और डेली डेटा डिलीट भी होता है, सम डेटा डिलीट होता है और बाकी का कुछ डेटा स्टोर होता है अलग टेबल्स में। तो हमारे पास प्रूफ होना चाहिए, इसके लिए कंपनी में ऑटोमेशन टास्क होता है कि डेली जिस टाइम पे फॉर एग्जांपल मेरा रात के 3 बजे डेटा न्यू डेटा आ रहा है,
डेटाबेस में, और मेरा टेबल डिलीट होने का टाइम है 2:30। तो 2:30 को टेबल डिलीट होने के पहले जो भी मेरा आज का डेटा है वो मेरा सब कुछ ऑटोमेटिकली बैकअप होना चाहिए। इसके लिए बैकअप 2 बजे मेरा बैकअप ऑटोमेटिकली स्टोर होना चाहिए एक फोल्डर में। उसके लिए हम यूज़ करते हैं MSDB डेटाबेस। ओके, अभी मीन्स कंपनी बहुत सारे कंपनीज डेटाबेस बैकअप के लिए ऑटोमेशन टास्क यूज़ करते उस ओके। These automatic tasks are called jobs. Instead of manually doing same work every day, SQL Server perform these operations automatically. Information related to jobs, backups, alerts, automation tasks is stored inside MSDB database. This database mostly used by SQL Server agent. Okay. Fourth database is temporary database. Temporary database, TempDB, is used for temporary storage. Suppose SQL Server is performing sorting operations, joins, temporary calculations, temporary tables. That temporary data is stored inside temporary database. Okay. Now let's understand with example. Suppose you are sorting lack of employees record, or SQL Server is joining multiple large tables. During this operation, SQL Server needs temporary working space. That temporary working data is stored inside TempDB. Suppose we create temporary table create करते हैं like shift hash employee data. That temporary table also gets stored inside TempDB. One important point here, when your SQL Server restart, TempDB gets recreate automatically because TempDB stores only temporary data. ओके अभी ये टेम्पररी डेटा जब टेबल हम क्रिएट करते तब हम हैशटैग यूज़ करते टेबल के नेम के पहले। हम ये सब कुछ नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ओके, नाउ दिस इज ये कॉन्सेप्ट है वो ध्यान में रखो। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड यूज़र डेटाबेस। यूज़र डेटाबेस क्या होता है? यूज़र databases are databases created by users or developers for for storing the application or project data. For example, अभी बैंकिंग एप्लीकेशन है, हॉस्पिटल डेटाबेस है, इंश्योरेंस प्रोजेक्ट, ई कॉमर्स वेबसाइट. फॉर एवरी एप्लीकेशन डेवलपर्स क्रिएट सेपरेट डेटाबेसेस एज पर देयर नीड्स. डेवलपर्स डेटाबेस क्रिएट करते हैं, उसके लिए उसको बोलते हैं यूज़र डेटाबेसेस. अभी हम प्रैक्टिस के लिए भी एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे, वो होगा यूज़र डेटाबेस. ओके, now let's understand with the real life example. Suppose we are working on banking project. We can create database BankDB. अभी मैं बैंकिंग डेटाबेस में, मेरा डोमेन है बैंकिंग का, उसमें मैं काम कर रही हूँ कंपनी में. अभी मुझे नीड ए न्यू डेटाबेस की, तो मैं क्रिएट डेटाबेस BankDB ये डेटाबेस में क्रिएट करूँगी. अभी BankDB ये डेटाबेस है, उसके अंदर मैं क्या क्रिएट करूँगी? कस्टमर टेबल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेबल्स मैं क्रिएट करूँगी. कस्टमर टेबल्स, अकाउंट्स टेबल, ट्रांजेक्शन्स टेबल, जो भी टेबल्स की मुझे नीड होगी, जो भी डेटा मेरे पास क्लाइंट से आएगा, उस टेबल के लिए मैं सेपरेट टेबल्स क्रिएट करूँगी. नाउ सपोज वी आर वर्किंग ऑन हॉस्पिटल मैनेजमेंट डेटाबेस. ओके, अभी हॉस्पिटल मैनेजमेंट डेटाबेस में जो भी कोई काम कर रहा है वो हॉस्पिटल डेटाबेस क्रिएट करेगा. हॉस्पिटल डेटाबेस क्रिएट करेगा, उसके अंदर वो पेशेंट टेबल रहेगा, डॉक्टर्स टेबल, अपॉइंटमेंट टेबल्स, ऐसे अलग अलग हम टेबल्स क्रिएट करेंगे जैसे हमको नीड होंगी और जैसे क्लाइंट से डेटा आएगा. ओके, तो ये मैनेज करने के लिए ईजी होगा. लाइक दैट इंश्योरेंस डेटाबेस, ई कॉमर्स डेटाबेस के लिए भी सेम होता है. Similarly for every projects we create the separate databases, and inside the databases we create tables, and inside tables we store actual records. Now one important question, why don't we store
प्रोजेक्ट डेटा इनसाइड द सिस्टम डेटाबेस। अभी हमारे पास सिस्टम के 4 डेटाबेसेस है, तो हम अलग डेटाबेस क्यों क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है ना। हमें सेपरेट डेटाबेस क्रिएट करने की नीड क्या है? बिकॉज हम सिस्टम डेटाबेस क्यों नहीं यूज़ करते? बिकॉज सिस्टम डेटाबेस आर रिजर्व फॉर SQL सर्वर इंटरनल ऑपरेशंस। ओके, if we store project data there in system databases, so it can be affect SQL server performance and stability. That's why in real world projects developer always create separate user databases. Now let's create, हम ये डेटाबेस नेक्स्ट वीडियो में क्रिएट करेंगे। ओके, हमें डेटाबेस क्रिएट करेंगे एंड ये क्रिएट डेटाबेस कंपनी DB, दिस कमांड क्रिएट्स न्यू डेटाबेस कॉल्ड कंपनी DB। आफ्टर क्रिएटिंग दिस डेटाबेस वी कैन सी इधर डेटाबेस सेक्शन में वो हमारा डेटाबेस आ जाएगा। हम अभी क्रिएट कर लेते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड क्रिएट डेटाबेस कंपनी DB। अभी मुझे ये डेटाबेस क्रिएट करना है, मैं इधर एग्जीक्यूट करूँगी। ओके, कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अभी ये डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अभी मुझे देखना है मेरा डेटाबेस क्रिएट हुआ है क्या नहीं। इधर मैं रिफ्रेश करूँगी, ठीक है। इधर मुझे कंपनी DB मेरा दिखेगा। अभी ये नहीं दिख रहा है, इधर रिफ्रेश होने के बाद ये दिखता है। अभी मैं फिर से ये कंपनी क्रिएट डेटाबेस कंपनी DB करूँगी तो वो ऑलरेडी डेटाबेस कंपनी DB ऑलरेडी एग्जिस्ट, चूज अ डिफरेंट डेटाबेस नेम, ऐसा आएगा, ठीक है। इधर डिस्कनेक्ट किया, अभी फिर से कनेक्ट करती हूँ क्योंकि वो रिफ्रेश नहीं हो रहा है ना, इसके लिए। अभी डेटाबेसेस में ये देखो अभी आया मेरा कंपनी DB। कंपनी DB में मुझे टेबल्स में जब टेबल्स क्रिएट करूँगी तो इसमें मेरे अलग अलग इधर मेरे यूज़र टेबल्स रहेंगे। व्यूज़, एक्सटर्नल रिसोर्सेज, प्रोग्रामेबिलिटी, इसमें हम स्टोर प्रोसीजर फंक्शंस हम सब देख सकते हैं। देन सर्विस ब्रोकर, स्टोरेज, इधर सब कुछ दिखता है। ओके, आफ्टर क्रिएटिंग डेटाबेस यू कैन सी इट अंडर डेटाबेस सेक्शंस। दिस इज द कंपनी DB आया हमारा, ठीक है। Inside this database we will create our tables in upcoming videos. Now let's quickly summarize today's session. Today we understood what is SSMS, what is Object Explorer, what are the system databases. System databases कौन से master database, model database, MSDB database, TameDB database. एंड देन व्हाट इज़ यूज़र डेटाबेस, ये भी हमने सीखा। वाई वी क्रिएटेड द सेपरेट डेटाबेसेस, मीन्स हम सिस्टम डेटाबेस क्यों नहीं यूज़ करते, हम यूज़र डेटाबेस अलग डेटाबेस क्यों क्रिएट करते, ये भी हमने अंडरस्टैंड किया। इन दिस नेक्स्ट वीडियो वी विल अंडरस्टूड SQL डेटा टाइप्स इन डिटेल्स. If you found this video helpful, please like, share and subscribe to my channel. And if you have any doubts, feel free to comment. I will definitely try to help you. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।